Welcome in trigonometry, part 26 this will be. Trigonometry part 20, properties of triangle part 1, but trigonometry it is part 26. Welcome in trigonometry part 26. This is a new chapter, properties of triangle. Okay. So in properties of triangle, first of all we have to read sine rule. One thing you understand first before writing sine rule. There is a triangle, name it as A B C, a triangle. This angle is called angle A. If anywhere written capital A means it is angle A. This is angle B, this is angle C, और इसको कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C लिखते हैं. इसका मतलब एंगल हुआ. एंगल A का सामने वाला साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल A, यानी ये BC का जो लेंथ है उसको हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं. एंगल B का ऑपोजिट साइड का लेंथ को स्मॉल b से, और एंगल C का ऑपोजिट साइड का लेंथ को स्मॉल c से. तो if anywhere written small a, small b, small c, then you must understand these are sides of a triangle. Small a means side opposite to angle A. Small b means side opposite to angle B. And small c means side opposite to angle A. This is what you have to know. Now, first of all, sine rule. Sine rule is in triangle ABC. If there is a triangle ABC, small a by sine of angle A equal to small b by sine of angle B, small c by sine of angle C. This is called sine rule. What is sine rule? Small a by sine A equal to small b by sine B equal to small c by sine C. मतलब एंगल A का सामने वाला साइड और एंगल A का साइन का रेशियो, ये एंगल B का सामने वाला साइड और एंगल B के साइन का रेशियो, एंगल C के सामने वाला ये साइड का लेंथ है और ये साइन C है, माने एंगल C का साइन है, इसका रेशियो, ये तीनों रेशियो हमेशा बराबर होता है एक ट्रायंगल में. इन एनी ट्रायंगल ABC, small a by sin A is equal to small b by sin B is equal to small c by sin C. This is what is called sine rule. Okay. We have to see how this result has come, means its derivation. One more thing, this will be used here again and again. Suppose this is a right angle triangle. Okay, this angle is 90. This angle is suppose A, this is B, this is C. Okay. So, okay, this side, ये जो side है, मतलब BC. BC is perpendicular for angle A. एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है. ये तो हाइपोटेनस फिक्स्ड है, ये बेस है. तो ये जो साइड है BC, इसको हमेशा AB साइन ऑफ एंगल A लिख सकते हैं. जरा ध्यान से देखिएगा. BC कैन बी रिटन एज AB साइन है, AB उसका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इनटू साइन ऑफ दिस एंगल. ध्यान से देखिए. और ये जो साइड है, ये बेस है ना एंगल A के लिए, तो इसको हम लोग ये हाइपोटेनस AB इंटू कॉस ऑफ एंगल A लिख सकते हैं. देखिए तो आप यहाँ लिखिएगा साइन A, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर BC बाय हाइपोटेनस AB, नहीं
तो BC को क्या लिख सकेंगे हम लोग, AB साइन ए, नहीं, ये BC को लिख सकेंगे AB साइन ए। और वहीं अगर आप cos A लिखना चाहिएगा तो बेस बाय हाइपोटेनस होगा CB बाई AB होगा। तो यहाँ से CB क्यों, ये CA ना, cos A base by hypotenuse, for this angle A base is CA and hypotenuse AB. Okay, so CA can be written as AB cos A। ये जो CA माने बेस को हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनस इंटू एंगल A, और ये परपेंडिकुलर बेस को लिख सकते हैं हाइपोटेनस इंटू कॉस ए, AB cos A, और परपेंडिकुलर को लिख सकते हैं हाइपोटेनस इंटू साइन ए। बेस जो होगा ना वो हाइपोटेनस इंटू कॉस ऑफ द कंसर्न एंगल, और जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइपोटेनस इंटू साइन ऑफ द कंसर्न एंगल। ये चीज़ आप ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि ये बार बार यूज होने वाला है। नाउ लेट अस सी इट्स प्रूफ, यू कैन से। इन triangle ABC, small a by sin A equal to small b by sin C equal to small c by sin C. Your triangle may be equate, may be obtuse, may be right angle. For any triangle it is. So one by one in all the cases we try to understand. If triangle is equate, then this formula is correct or not. If your triangle is obtuse, then this formula is correct or not. If your triangle is right angle triangle, then this formula is correct or not. So case 1, a triangle is suppose acute angle triangle. Let us take an acute angle triangle. The acute angle triangle means all the angles are below 90 degree. In this way, there is a triangle ABC is an acute angle triangle. Okay. In this acute angle triangle, you have to see small a by sin A equal to small b by sin B equal to small c by sin C is correct or not. Let us see. From here, if you draw a perpendicular BD, okay, AD, then what can you write for AD? जरा देखिए। अच्छा, एक बात और, ये ABC ट्रायंगल है तो ये BC साइड होगा आपका स्मॉल है, इसका ऑपोजिट साइड ये वाला ये होगा स्मॉल b, और ये एंगल का ऑपोजिट साइड ये होगा स्मॉल c। ये बात समझे, ये साइड होगा आपका पूरा स्मॉल a, ये साइड होगा स्मॉल b, और ये साइड होगा स्मॉल c। ओके, AD को क्या लिख सकते हैं जरा देखिए तो, ये इस ट्रायंगल में देखिए ये परपेंडिकुलर है ना एंगल B के लिए, तो इसको आप C साइन B लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, वही जो अभी बताया, परपेंडिकुलर कैन बी रिटन एज हाइपोटेनस इनटू साइन ऑफ द कंसर्न एंगल। अच्छा, इस ट्रायंगल में देखिए तो इसके लिए हाइपोटेनस B है ना, तो आप इसको B साइन C भी लिख सकते हैं, है क्या। AD को आप C साइन B और B साइन C भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये ट्रायंगल है आपका ABC, दिस साइड इज स्मॉल a, दिस इज स्मॉल b, स्मॉल c। A से परपेंडिकुलर लिए थे ना, अब जरा इधर से एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए ऐसा, ठीक है। ये मान लीजिए आपका BD परपेंडिकुलर है, तो जरा यहाँ से देखिए तो BD इस ट्रायंगल को ले लीजिए, ये एंगल C है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये BD को क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हाइपोटेनस है ये स्मॉल a, तो स्मॉल a साइन C लिख सकते हैं, साइन C माने ये एंगल C है, समझे बात। अब इस ट्रायंगल पर आइए, इसमें ये एंगल A है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है BD, ये हाइपोटेनस है C, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं C साइन A। इक्वेशन नंबर 2, बोलिए आप समझे कि नहीं।
फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 में देखिए, यही लिख देते हैं इसको, इक्वेशन 1 में c साइन b इक्वल टू b साइन c, तो c बाई साइन c इक्वल टू होगा ना b बाई साइन b, नहीं साइन c को इधर ले गया, साइन b को उधर ले गया, और यहां से क्या होगा, स्मॉल a बाई साइन a इक्वल टू स्मॉल c बाई साइन c, ये होगा ना. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. ओके, नाउ सी फ्रॉम 1 and 2. From 1 and 2 you can write small a by sin a is equal to small b by sin b equal to small c by sin c. बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं. स्मॉल a by sin a इक्वल टू होता है स्मॉल c by sin c, और स्मॉल c by sin c इक्वल टू है स्मॉल b by sin b. So ultimately we can write small a by sin a equal to small b by sin b equal to small c by sin c. It means if your triangle is an equitangle triangle, you can show small a by sin a equal to small b by sin b equal to small c by sin c. मतलब इसमें ठीक है. Now let us take the triangle is obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle means कम से कम एक एंगल उसका, कम से कम नहीं एक ही तो होगा, एक एंगल जो है 90 से बड़ा लेंगे. ठीक है, तो लेट अस टेक, ये चीज समझ गया. Now let us take an obtuse angle triangle. इसको केस 2 कर लीजिए. ओके, ऐसा ले लीजिए एक ट्रायंगल, इधर लेते हैं, ऐसा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ए बी सी ले लीजिए. एक एंगल 90 से बड़ा है, B is obtuse, so it is an obtuse angle triangle. अच्छा, obtuse angle triangle में ये है आपका एंगल A, तो ये हो गया साइड A, ये है एंगल C, तो ये हो गया साइड C, और ये एंगल है B, तो ये हो गया आपका साइड B. ये ठीक है. आप इसको बढ़ा दीजिए और यहाँ से इसको परपेंडिकुलर खींच लीजिए. ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये होगा पाई माइनस बी. थोड़ा भीड़ हो गया, देखिए ये जो एंगल है ना, इसको आप पाई माइनस बी या 180 माइनस बी समझ सकते हैं. ये बी है आपका, तो ये होगा 180 माइनस बी. ठीक है, ये सी डी है मान लीजिए परपेंडिकुलर, तो ये सी डी को आप क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए. ये परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए, और ये हाइपोटेनस हो गया इस छोटा ट्रायंगल में, तो स्मॉल ए साइन पाई माइनस बी, ये पाई माइनस बी है एंगल, तो ये हो जाएगा स्मॉल ए साइन बी. साइन पाई माइनस बी साइन बी ही होता है. ठीक है, एक दूसरा. अब ये सी डी को आप ये पूरा बड़ा ट्रायंगल लीजिए, ये बड़ा ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है आपका बी, नहीं, और ये एंगल है आपका ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, तो ये सी डी को आप, हाइपोटेनस बी है तो बी साइन ए भी लिख सकते हैं, नहीं क्या. सी डी को ये पूरा बड़ा ट्रायंगल में लिखिएगा तो बी साइन ए होगा, ये छोटा ट्रायंगल में लिखिएगा तो ए साइन पाई माइनस बी होगा, है वही साइन बी. सो यू कैन राइट ए साइन बी इक्वल टू बी साइन ए, तो यहां से आ जाएगा आपका स्मॉल ए बाई साइन ए इक्वल टू स्मॉल बी बाई साइन बी. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए. ठीक है, एंगल बी आपका ऑब्ट्यूज था, दूसरा भी तो ऑब्ट्यूज हो सकता है. आपका ऑब्ट्यूज जो एंगल है ये मान लीजिए ए है,
इधर बी कर दीजिए, इधर सी कर दीजिए। सपोज ए इज ऑब्ट्यूस, दिस इज स्मॉल बी, दिस इज स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल सी। देन अब इसको बढ़ा दीजिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए। ये एंगल आपका होगा पाई माइनस, ये एंगल ए है तो ये होगा पाई माइनस ए। समझ गए बात? अब इस छोटा ट्रायंगल के लिए ये तो हाइपोटेनस है ना, ये कौन, इसको बीडी ले लीजिए। तो दिस हाइपोटेनस कैन बी रिटन एज दिस परपेंडिकुलर बीडी कैन बी रिटन एज सी। ये सी हाइपोटेनस है, सी साइन ये वाला एंगल पाई माइनस ए मीन्स साइन ए। समझ गए? फिर ये बड़ा ट्रायंगल लीजिए, ये बड़ा ट्रायंगल में ये बीडी है, इसका ऑपोजिट एंगल एंगल सी है, एंगल सी का परपेंडिकुलर है ये, और ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस आपका ए है, तो इसको हम लोग ए साइन सी भी लिख सकते हैं। BD can be written as A sin C. BD can also be written as C sin pi minus A. Means C sin A equal to A sin C. तो यहां से आपको मिल जाएगा C by sin C इक्वल टू A by sin A. इसको रख लीजिए इक्वेशन नंबर 2. देखिए तो 1 और 2 को फ्रॉम 1 and 2 यू कैन इजीली राइट, ऐसा लिख सकते हैं आप, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट स्मॉल a by sin A इक्वल टू स्मॉल b by sin B इक्वल टू स्मॉल c by sin C. So in this way, if your triangle is obtuse, then also we can show yes, small a by sin A, small b by sin B equal to small c by sin C is true. Now let us see if triangle is a right angle triangle, then this formula is correct or not. That also we want to see. Means case 3, when the triangle is a right angle triangle. Now we want to see case 3. Case 3, when triangle is a right angle triangle. एक right angle triangle लिया जाए, चलिए ये right angle है, A B C कर लीजिए, तो ये हो जाएगा स्मॉल a, ये हो जाएगा स्मॉल b, ये हो जाएगा स्मॉल c. ठीक है, एंगल B ये है, ये एंगल C है, एंगल B के लिए ये परपेंडिकुलर है ना, स्मॉल b इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल B, तो स्मॉल b को हम लोग लिख सकते हैं a साइन b. ध्यान से देखिए, स्मॉल b को ये हाइपोटेनस है ना, तो a साइन b लिख सकेंगे. शुरू में ही बताया तो ये कैसा हो रहा है. ठीक है, और फिर b को b इंटू 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 की जगह पर साइन 90 लिखने से क्या होगा, साइन 90 तो 1 ही होता है ना, साइन 90 को आप साइन a लिख सकते हैं ना, क्योंकि एंगल a 90 है. बात समझे? तो यहां से आपको मिल जाएगा स्मॉल b बाई साइन b इक्वल टू स्मॉल a बाई साइन a. टेक इट इक्वेशन नंबर 1. बोलिए बात समझे? b को b इंटू 1, 1 की जगह पर साइन 90 लिखे, साइन 90 1 होता है, और 90 डिग्री तो a है. अब एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, ये a था ना, इसको आप b कर लीजिए, इधर a कर लीजिए, तो ये साइड होगा आपका तब स्मॉल b, ये होगा स्मॉल a, एंगल c का सामने वाला अब ये स्मॉल c होगा. ठीक है,
तो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल सी, स्मॉल सी, ये वाला जो साइड है, हाइपोटेनस है बी, इसको लिख सकेंगे बी साइन सी। देखिए ये सी में कंफ्यूजन होता है, कौन बड़ा कौन छोटा। साइन के साथ जो लिखा हुआ है वो एंगल है, साइन के साथ जो लिखा है वो एंगल है। साइन के साथ यहाँ कोई नंबर हो नहीं सकता, और ये अलग से लिखा हुआ मैंने, ये नंबर समझिए इसको, स्मॉल सी है, ये वाला साइड है मतलब, इक्वल टू बी साइन सी, सी मतलब ये एंगल सी है, समझे इसको। क्योंकि साइन ए लिखते हैं तो ए मस्ट बी एन एंगल। अच्छा सी को सी इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 को साइन 90 लिख सकते हैं, और 90 को बी भी लिख सकते हैं, एंगल बी 90 है, इक्वल टू बी साइन सी। तो यहां से आपको मिलेगा स्मॉल सी बाई साइन सी इक्वल टू स्मॉल बी बाई साइन बी। टेक इट इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को देखिए बढ़िया से, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, स्मॉल a बाई साइन a इक्वल टू स्मॉल b बाई साइन b इक्वल टू स्मॉल c बाई साइन c, यू कैन से। तो इन ऑल द 3 cases, whatever your triangle may be, either equate or obtuse or right angle, you can say yes, small a by sin a equal to small b by sin b equal to small c by sin c is true. Now let us see one more result related to this only. थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन करेंगे इसका, आप उसको ठीक से देखिए। सर्कम सर्कल समझते हैं। If a circle passes through all the 3 vertices of a triangle, then the circle is called circumcircle. If a circle passes through all the 3 vertices of a triangle, if there is a triangle in this way, means there is a circle which passes through all the 3 vertices of a triangle, then this circle is called circumcircle for this triangle. इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल करते हैं उसको। तो लेट देयर इज अ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, मान लेते हैं उसका रेडियस आर। तो रेडियस आर है तो ये आपका आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। ये बात आप समझ गए। इफ ओ इज द सेंटर एंड आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्कम सर्कल of triangle ABC, then this will happen. अच्छा, जरा देखिए, ये एंगल A है, ये पूरा एंगल B है, ये पूरा एंगल C है, ठीक। ये एंगल अगर A है तो ये कितना होगा, 2A होगा, 2A। ये एंगल होता है 2A। ज्योमेट्री में पढ़े ना कि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये इसका कोई आर्क है, यहाँ कोई पॉइंट ले लिए, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, इसका कोई सेंटर है सर्कल का, यहाँ वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड दिस एंगल विल बी 2 थीटा। ये पढ़े हैं ज्योमेट्री में कि सेंटर पर एंगल जो होता है वो डबल होता है। दिस एंगल इज ए, देन दिस एंगल विल बी 2A। बात क्लियर? अच्छा, देखिए ये कितना है R, ये भी है R, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। ऑपोजिट साइड का ऑपोजिट एंगल भी तो इक्वल होता है। द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए इसके ऊपर, ऐसे। तो परपेंडिकुलर खींच दिए तो ये दोनों इक्वल होगा। देखिए ओ बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर खींच देने से ये बाइसेक्टर हो जाता है,
BC का बाइसेक्टर होगा ये OD, यानी ये दोनों पार्ट इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों पार्ट इक्वल होगा। देखिए ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये भी 90-90 है, तो ये दोनों भी बराबर होगा, तो ये आपका A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा। ये पूरा 2A था ना, तो ये A हो जाएगा दोनों, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएगा। सेकेंडली ये स्मॉल a है, तो ये पूरा साइड BC आपका स्मॉल a होगा, ये स्मॉल a होगा ना पूरा साइड BC। ठीक है, ये B है तो इधर पूरा B होगा ना ये साइड, ये एंगल C है तो ये C होगा। तो ये BC स्मॉल a है, ये इक्वल है ये दोनों, माने D मिडिल पॉइंट है, तो ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा आपका a/2, हाफ हाफ हो जाएगा। BD इज a/2, DC is also a/2. Okay. Now in this small triangle, ये वाला जो स्मॉल ट्रायंगल है उसमें आप जरा साइन A लेके देखिए। इस छोटा ट्रायंगल में हम कह रहे हैं साइन A लीजिए। साइन A परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इस छोटा ट्रायंगल में A एंगल के लिए परपेंडिकुलर है ये सामने वाला, दिस इज परपेंडिकुलर, एंड व्हाट इज हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है 90 का सामने वाला R। पहले बात समझे, छोटा ट्रायंगल में साइन A इक्वल टू स्मॉल a/2 बाई R, और यू कैन से स्मॉल a/2R। सो यू कैन से स्मॉल a परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो ओके, तो ये स्मॉल a/2R इक्वल टू साइन A, तो ये मल्टीप्लाई होगा इधर ना, ऐसा कर लीजिए, सीधा ही लिखे ना, ये साइन A को इधर ले आइए नीचे ऐसा, और ये 2R को इधर ले आइए। चलिए ठीक है। So can you write small a by sin A equal to 2R, where what is R? R is ये सर्कम सर्कल का रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। Therefore हमारा साइन रूल है कि साइन स्मॉल a by sin A इक्वल टू स्मॉल b by sin B इक्वल टू स्मॉल c by sin C। ये तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। और स्मॉल a by sin A कैन बी रिटन एज 2R, सो स्मॉल b by sin B इज ऑल्सो इक्वल टू 2R, स्मॉल c by sin C इज ऑल्सो इक्वल टू 2R। So you can write small a by sin A equal to small b by sin B equal to small c by sin C equal to 2R, where R is the radius of this circumcircle of triangle ABC। ये बात आप ठीक से याद रखें। तो दिस इज व्हाट इज साइन रूल, कि इन एनी ट्रायंगल ABC स्मॉल a by sin A is equal to small b by sin B is equal to small c by sin C. Also small a by sin A equal to small b by sin B equal to small c by sin C can be written as 2R। और यहीं से देखिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2R sin A, नहीं, स्मॉल b को लिख सकते हैं 2R sin B, स्मॉल c को लिख सकते हैं 2R sin C। Is not it? So this is what is sine rule and its derivative. I hope you have understand sine rule, इसको याद रखना है। साथ में कैसे आया ये भी आपको आना चाहिए, समझना चाहिए कि कोई फार्मूला जब आप याद करते हैं या उसको यूज़ करते हैं तो ये मालूम होना चाहिए कि हाँ ये फार्मूला करेक्ट है, इट कैन बी ड्राइव्ड। So in this video this much, in the next video we see another rule called cosine rule। So in this video this much, thank you।